Hello and welcome to the another chapter of arithmetic progression. ये चैप्टर है इट्स चैप्टर 2 ऑफ arithmetic progression. In chapter 2 we'll read about nth term of AP. Suppose कुछ examples करते हैं. पहले first we'll deal with few examples और examples करने के बाद अपन exercise करेंगे. Exercise 5.2. So example number 1. Suppose रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब, पहला वाला जो हमने फर्स्ट सेक्शन में किया हुआ था. एंड सी रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड. शी हैज बीन ऑफर्ड द जॉब with a starting monthly salary of 8,000 with an annual increment of 500 rupees. Now what would be her monthly salary for the fifth year? So to answer this, we will first see what her monthly salary for the second year would be. So see, Reena applied for a job and she got selected. Her first month salary is 8,000 rupees. Now after an annual increment is of 500 rupees. So next year her salary will be 8,500 rupees. You are asked to find her salary in the beginning of fifth year. You are asked to what would be her monthly salary for the fifth year. So salary for second year is this much. Salary for first year. Salary for second year. Now salary for third year is 8,500 plus 500. This is 9,000. 9,000 for third year. Now annual increment is of 500 rupees. So this is 9,500 rupees for fourth year, and for fifth year again you will add 500 rupees. So this will become 10,000, right? So this is fifth year salary. This is fifth year salary. Now how we find this? Check the pattern. We have added first, second, third similarly. See, this is added this way. 8,000 plus 500. So this is for first. Now this is 800. 8,000 plus 2. This is for second year. So second year means 2 minus 1 into 500. So this is 8,500. For third, 3 minus 1 into 5. So this is 9,000. Again 8,000 plus 4 minus 1 into 500. So this is 9,500. Again for fifth consecutive year, this is 5 minus 1 into 500. So this is 8,000 plus 200. 2,000, that is 10,000. So this is your amount. In the beginning of salary for the fifth year is 10,000. Now observe this pattern. This is 8,000, this is 8,500, this is 9,095 and this is 10,000. तो इसको हटाते हैं और ये आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो हर पैटर्न में सिमिलर डिफरेंस है. यहाँ भी 500 का डिफरेंस है, इधर भी 500 का डिफरेंस है, इधर भी 500 का डिफरेंस है और इसमें भी 500 का डिफरेंस है. अगर डिफरेंस सेम होता है तो जो सीरीज हमें मिलता है उस सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. Now we will start doing questions only. See, this is and before starting with example, ये तो सिमिलर था, इसमें डिफरेंस बता देता है कि ये एपी में है. एक और सवाल देखते हैं इसके बाद. अगर एपी लिख रहे होते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ऐसे लिखा जाता है: A1
कॉमा A2, कॉमा A3, कॉमा A4, कॉमा A5, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखो, ये जो A1 है, ये दिस इज फर्स्ट टर्म एंड A2 हो गया सेकेंड टर्म। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है D, ये होता है A2 माइनस A1, ये इक्वल होगा A3 माइनस A2 के, या फिर ये इक्वल होगा A4 माइनस A3 के। इसको ऐसे लिख सकते हैं, D इज A K प्लस 1 माइनस A ऑफ K इज डिफरेंस। ये मैटर करता है D ऑफ A K प्लस 1 माइनस A ऑफ K, इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, राइट। नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द nth टर्म, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, जब हमने ये लिखा, ये 8000 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 500 इक्वल टू 8500, ये सेकेंड ईयर के लिए था। इसका क्या मतलब? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म के लिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। दिस फॉर्मूला विल बी ऑफ वेरी यूज, ये यूजफुल फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करना है, राइट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन। इन जनरल, ये ए एन को जनरल टर्म बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, और एल से लास्ट टर्म को दिखाया जाता है। लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं और ए से फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं। ए से फर्स्ट टर्म को और एल से लास्ट टर्म को डिनोट किया जाता है। सो दिस इज, this part we have done. Now we will start solving questions. Example 3, we will start from example 3, page number that you see yourself. Please, okay, I'll tell you, the page number is 58. Page number 58 NCERT. Now question, example 3 we are doing. We are asked to write 10th term of AP, 2, 7, 12. 10th term is what? 2, 7, 12. This is your series. So A equal to 2 and D is 7 minus 2, that is 5. So A of 10 is A plus n minus 1 into D. यहाँ से n लिखना है and this n is 10. n equal to 10. यहाँ देखो, A of 10 is, A का वैल्यू है 2 और यहाँ 10 minus 1 into D. D is 5. So this is 2 plus 9 into 5. This is 2 plus 45. 47. A of 10 will be 47. So this is your answer. 10th term of the given AP is 47. 10th term of given AP is 47. Right? We will solve another question, that is example 4. Example 4 is, which term of the given AP is minus 81? Also, in any term 0, is any term 0? Give reason for your answer. So we have been given one series. इस सीरीज में हमें सॉल्व करना है कि 0 एक सीरीज का मेंबर है या नहीं है। तो देखो, फर्स्ट एपी दिया हुआ है 21
18, 15 and minus 1. 21, 18, 15 डॉट 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 माइनस 18 कौन सा सीरीज है? तो a of n is a plus n minus 1 into d. So see, a is 21, d is 18 minus 21, that is minus of 3, and when we solve this, we have been given a n is minus 81. See, this is minus 81 equal to 21 plus n minus 1, d is minus 3. So minus 81 equal to 21 minus 3n plus 3. So this is minus 18 equal to 24 minus 3n. So 3n equal to 18 plus 24. This 3n is 105. So n is 35. Now this n is 35. Now check. This is your answer. Also we are asked if 0 is any term. Also is any term 0. So see, if an is 0, then find an is a of n, a plus n minus 1 into d. So this is 0 equal to a is 21 plus n is 35. So 35 minus 1 into d. Now check this. This is 21 plus, we have to check whether this lies somewhere. N minus 1 into, we have found this as 18 minus 21 is minus of 3. So this is minus 3. यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3n प्लस 3n आएगा. तो 3n इक्वल टू 24. सो n इज 8. तो इसका यह मतलब कि 0 लाइज इन दिस सीरीज. तो पहला वी गॉट द आंसर. The n is 35. 35th term of the given AP is minus 81, and also the 8th term is 0. So 35th term of AP is minus 81, and 8th term of AP is 0. So this is our answer. ये हमारा आंसर है. एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं. Now we will solve example number 5. The example number 5 says the third term or fifth term given है. Determine the AP whose third and fifth term is 5 and third term is 5 and seventh term is 9. Third term is 5 and seventh term is 9. So see, A3 is A plus n minus 1 into D. Now see, n is 3 over here. इसका मतलब A plus 3 minus 1 into D, that is A plus 2D. और दूसरा वाला है A7. ये कितनी है? इसकी वैल्यू 5 है. दिस यू विल राइट दिस एज A plus 2D इक्वल टू 5. और दूसरा है A7. A7 क्या होगा? A plus 7 minus 1 into D. इसको लिखोगे A plus 60 और इसकी वैल्यू 9 है.
a plus 60 is 9. अब इसे सॉल्व करना, ये माइनस कर लो, तो दिस इज -4d इक्वल टू -4, सो d इज 1. अब अगर d 1 है तो a कितना होगा, चेक, a plus 2d इक्वल टू 5, तो a plus 2 इक्वल टू 5, ये a जो होगा ये हो जाएगा 3 और d हो गया 1. यही है हमारा आंसर. वी आर आस्क्ड टू राइट दिस ओनली. डिटरमाइन द AP whose first term, okay. दिस वी हैव रिटन, a आ चुका है और d आ चुका है, तो हमें AP लिखना है. AP होता क्या है, a कॉमा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे लिखते हैं. तो जब ऐसे लिखते हैं तो सी a इज 3, फिर 3 में 1 ऐड करोगे 4, 2 ऐड करोगे 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ऐसा नहीं होना था, हाँ ऐसा ही होना था, एक का डिफरेंस है, हर किसी में 1 का डिफरेंस होगा. जब 1 का डिफरेंस होगा तो ये डिफरेंस अगर सेम है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो ये हो गया गिवन AP, राइट. दिस इज डन. नाउ वी विल सॉल्व. दिस इज रिक्वायर्ड AP. Example number 6 we'll solve. Example number 6 करते हैं. Example number 6 is check whether 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23. So we have to check whether 301 is a term of the list of number. चलो देखो अगला क्वेश्चन. चेक करो कि whether 301 is a term of the given polynomial, given arithmetic series. ये है 5, 11, 17, 23, उसके बाद 301. ये है या नहीं है वो चेक करना है. तो देखो a of n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a है कितना 301. इसको लिखोगे 5 प्लस n माइनस 1 और d हमें यहां से लिखना है, d इज 11 माइनस 5, दैट इज 6. तो यहाँ पे 6 लिखोगे. अब ये सॉल्व करते हैं. नाउ सी दिस इज 101 इक्वल टू 5 प्लस 6 and minus 6. Now this is 301 equal to 5 minus 6, so 6 and minus 1. So this 6 n equal to 302. So n is n is 302 divided by 6. So this should be positive number, hence this is not the term. This is not positive number. This is not positive integer. This is all. This is positive, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, और n जो है वो इंटीजर होना चाहिए. Hence 301 is not 301 is not term of given AP. गिवन AP का टर्म नहीं है. टर्म अगर होता तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व. एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 7 सेज how many 2-digit numbers are divisible by 3? Example number 7.
how many two-digit number are divisible by 3? So the list of two-digit number divisible by 3. Now see, we have to check, right, how many two-digit number divisible by 3. So list of number divisible by 3 लिखते हैं, जो 3 से divisible है, और 100 से कम कितना होगा? 99. जब भी ऐसा दिया जाता है कि अप टू 2 डिजिट, तो ये 3 डिजिट का है, इसको डिवाइड करोगे तो 33 आता है. अब इसके बाद 1 रिमेन्स, यहीं रुक जाते हैं. इसका मतलब ये 99 होगा, 33 इंटू 3, तो 99 के बाद तो लिमिट है ना, 100 आता है, यही रुकते हैं. ये पहला टर्म है, ये लास्ट टर्म है, मतलब a is 12. Now difference is 3, so d is 3. A of n is a plus n minus 1 into d. Now this is 99 equal to 12 plus n minus 1. So n minus 1 into d. n ही तो फाइंड करना है. यहाँ लिखोगे 99 equal to 12 plus 3n minus 3. So 99 equal to 9 plus 3n. So 3n is 90. n हो गया 30. अगर n 30 है, इसका मतलब 30 ऐसे नंबर है जो डिविजिबल होंगे 3 से. There are 30 two-digit number divisible by 3. So there are 30 two-digit number divisible by 3. 3 से 30 two-digit number है जो divisible है. अब अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. Example 8. Find the 11th term from the last term towards the first term of the AP. लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म के लिए सॉल्व करेंगे और 11th टर्म फाइंड करना है. 8th एग्जाम्पल है. This is example number 8. The series is nowhere written. 10 4 7 minus 62. 10 4 7 minus 62. 10 7 4. यहाँ लास्ट से इधर आना है और 11th टर्म लिखना है. इसका मतलब L इक्वल टू A प्लस L माइनस 1 इंटू डी, ये लिखना है. और ये सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को. क्यों लिखा हमने ये इसलिए लिखा है बिकॉज n is 11. 11th टर्म लिखना है. अब क्वेश्चन था कि फाइंड द 11th टर्म of the last term. Find the 11th term from the last term towards the first of the given AP. So A is given, D is given, now L is given. Now find the 11th term. देखो A कितना है इसमें? A is 10, D is 7 minus 10, this is minus 3. हमें सॉल्व क्या करना है? n की वैल्यू चाहिए, 11th टर्म चाहिए. तो ये n है यहाँ, ये 62 है. देखो जब ये सॉल्व करोगे तो वी नो वी नीड
फर्स्ट फाइंड हाउ मेनी टर्म इज देयर। अब ये टर्म अगर फाइंड हो जाता है तो फिर 11th टर्म फाइंड कर लेंगे। यहाँ देखो ए कितना है, -62 प्लस n-1 इंटू डी, इसको लिखेंगे 10। ओके, सी दिस क्वेश्चन रीड कि फाइंड 11th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम लास्ट। इसका मतलब ये लास्ट टर्म है। अब यहाँ से ऐसे करके फाइंड करोगे, ये वाला सीरीज होगा जो यहाँ से L-10 होगा। ये तो L है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11th टर्म है, इसको लास्ट से ये 11th है, ये टर्म निकालना है। पहले n निकाल लेते हैं। अब जो n होगा वो n कितना होगा, यहाँ देखो, यहाँ लिखोगे -62, ये हो गया 10, तो इसमें टोटल n तो आ ही जाएगा, ये 10 है और d जो है हमारा -3 है, तो n-1 इंटू -3। नाउ चेक दिस, 10 प्लस -3n प्लस 3, और यहाँ से 3n बाहर ले आते हैं, दिस इज 62 प्लस 10 प्लस 3, तो 13, और ये हो जाता है 75, तो 3n, तो 6n इज 25। अगर n 25 होता है तो 11th टर्म हमें फाइंड करना है। n इज 25। इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 25 टर्म है, उसमें हमें 11th, यहाँ से लेके ये 11th है, तो ये अगर 11th है इधर से, तो इधर से कितना होगा 11th, इसमें 11th है, इसका मतलब यहाँ से ये n-11 प्लस 1 करोगे तो 25 - 11, ये कितना होगा 14, और इसमें से एक 1 ऐड करोगे, ये हो जाएगा 15th टर्म। तो ये जो 15th टर्म है ये आंसर होगा। ये कैसे आया, ये अगर समझना है तो इसको ऑर्डर एंड रैंकिंग बोलते हैं। ये मेंटल मैथ्स में पढ़ाया जाता है, जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट है। सी दिस इज n-1 प्लस 1, दिस यू कैन सॉल्व। सपोज ये 11th नंबर है, तो 11th नंबर अगर है तो यहाँ से यहाँ तक ये 15th नंबर होगा, तभी तो एक ही नंबर है इसको 2 बार पढ़ रहे हैं। इस पूरे ग्रुप में एक नंबर को 2 बार पढ़ रहे हैं, यहाँ से ये 11th टाइम है, तो इसका मतलब ये अगर यहाँ से 11 है तो यहाँ से यहाँ तक तो 14 होगा, 14 होगा, तो इसका मतलब ये 15th है। समझ में आया? ये 11वें नंबर पे है और टोटल है 25, तो 14 इधर बच रहे होंगे, तभी तो 25 हुआ, और 25 14 के बाद अगर अगला भरोगे तो 15th होता है, तो ये 15th नंबर है। तो अभी क्या फाइंड करना, 15th नंबर। 15th नंबर का मतलब लास्ट से 12th होगा, तो ए ऑफ लास्ट से 11th होगा, तो ए ऑफ 15 जो होता है वो a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो a कितना है, a इज 10, दिस इज 15 - 1 एंड दिस इज 3, 3 नहीं है, माइनस ऑफ 3, तो 10 - 45 प्लस 3, इसको सॉल्व करोगे -35 प्लस 3, दिस इज -32, तो ये a ऑफ 15 जो है वो -32 होता है। दिस इज योर आंसर। चलो इसको दूसरे पैटर्न में भी कर लो, a ऑफ 11 अगर ऐसा लिखते हैं लास्ट से, तो इसको पहला टर्म मान लेते हैं, ठीक, दिस डजंट सीम सो।
ओके, कर सकते हैं इसको -62 मान लो फर्स्ट टर्म, और फिर लिखते हैं 11 - 3। और इसमें देखो कि डिफरेंस कितना आ रहा है। इसमें अगर ये -62 है तो डिफरेंस चेक करो, 4 के बाद 7 है। यहाँ से यहाँ जाओगे तो इसमें क्या करते हैं, 7 - 4, तो इसमें करेंगे 7 - 4। 7 - 4 होता है 3, इस में डिफरेंस आता है 3। तो -62 प्लस 8 इंटू 3, तो ये होता है -62 प्लस 24, ये हो गया 8, 32 और ये 3, तो -38। अगर ये A11 -38 है तो आंसर क्या होगा, A11 हो गया -18, 24, 24, तो इसको इसमें ऐड करोगे, ओह सो सॉरी, दिस इज, सी आई एम मेकिंग दिस मिस्टेक, दिस इज नॉट, ये इंटॉलरेंट वाला चीज है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -62 और यहाँ से प्लस करोगे, सो दिस इज 30, दिस इज -32, ये आंसर है। तो दोनों केस में यहाँ भी -32 और यहाँ भी -32, ये दोनों आंसर हो गया। तो ये एग्जाम्पल 8 था, एग्जाम्पल 8 ऑफ योर एक्सरसाइज। नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 says the sum of 1000 rupees invested at 8% simple interest per year. Calculate the rate interest at the end of each year and do these interest form an AP. If so, find the interest at the end of 30 years. Making use of this fact, कुछ नहीं करना, ए लिख लेते हैं और 30th टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। तो 9th टर्म है, 9th को सॉल्व करते हैं। एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर है, इसमें डिफरेंस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देखा जाता है। इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो nth टर्म देखते हैं, और nth टर्म देखने के बाद सम देखा जाता है। ये इसका ये है फर्स्ट टर्म, उसके बाद ये कॉमन डिफरेंस डी लिखते हैं, फिर nth टर्म होता है दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फिर सम ऑफ ऑल टर्म होता है, इसको लिखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ तक होता है। फिर सम को ऐसा भी लिखा जाता है n/2 इंटू a प्लस l। तो ये सब पार्ट है इस चैप्टर का, ये करोगे सॉल्व, तो यही इतना ही पढ़ना है 10th में, ये सभी पार्ट्स का यूज है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। तो अभी क्वेश्चन है कि a sum of 1000 rupees is invested at 8%, तो सम कितना है, P is 1000 rupees और R है 8%, तो इंटरेस्ट कितना होगा इस पे, इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। नाउ दिस इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 100, यहाँ पे 1 लगाओगे, 0000 गोज आउट, ये 80 रुपीज, ये 80 रुपीज का इंटरेस्ट हुआ। इसका ये मतलब कि 1000 रुपीज है, और 1000 रुपीज के बाद नेक्स्ट ईयर इसमें 80 रुपीज ऐड हो जाएगा, ये अमाउंट कितना होगा 1080। उसके बाद अगले साल ये सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम एवरीवेयर, तो सेकेंड ईयर ये हो जाएगा 1160, ये डॉट 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 बढ़ता जाएगा। पूछा गया है कि ए ऑफ 30 कितना होगा, इसको क्या लिखोगे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से हमें क्या मिला, डी कितना है, डी 80 है, ए है 1000 और n यहाँ पे 30 माइनस 1 इंटू 80, यहाँ देखो ये हो गया 1000 प्लस 29 इंटू 80, 1000 प्लस 8
8 9 जा 72 और 16 प्लस ये 23 होता है, तो दोनों को ऐड करोगे, दिस इज 3320 रुपीज आंसर। ये टर्म आया। दैट्स इट फॉर टुडे, वी आर रैपिंग दिस अप।